لاہور کا جغرافیہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم لوگ تمہید پڑھ چکے، ریٹن ٹیسٹ ریٹن لیکچر آپ کے پاس پہنچ گیا، محل وقوع پڑھ چکے۔ اس سے متعلق پیراگراف اہم تھا، وضاحت کے حوالے سے یہ دوسرا پیراگراف اہم تھا، معلومات دی جا چکی۔ حدود اربع کل کے لیکچر میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ آج ہم نے لاہور کی آب و ہوا کو طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مزاح کا پہلو ساتھ ساتھ رکھیں گے تو آپ کو لیکچر سمجھ میں آئے گا۔ مصنف کیا بتاتے ہیں؟ مصنف بتاتے ہیں لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو قریباً سب کی سب غلط ہیں۔ مزاح کا پہلو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ لاہور میں تو سرے سے آب و ہوا ہے ہی نہیں۔ جب نہ آب ہے نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے نہ ہوا ہے، جب آب و ہوا ہے ہی نہیں تو اس کے متعلق روایات دینا کہ لاہور کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے، سرد مرطوب ہے، یا خشک ہے، یا سرد تر ہے، تو ساری غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے، آگے بتاتے ہیں کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے۔ لاہور والے تو بیچارے ہوا کو ترس رہے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جیسے اور شہروں کو آپ نے خالص آب و ہوا دی ہے، اس طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے باشندے صاف و شفاف آب و ہوا سے محروم ہیں، اس لیے انہوں نے میونسپلٹی سے خواہش ظاہر کی ہے کہ انہیں آب و ہوا کی سہولت دی جائے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ آگے بتاتے ہیں میونسپلٹی سے مراد میونسپل کمیٹی ہو گئی۔ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا، بڑی بحث و تمہیز کے بعد بحث و تکرار ہو گئی، اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس ترقی کے دور میں جب کہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے، ہوم رول حق خود مختاری، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہوم رول ہے۔ ہوم رول اس کا مطلب حق خود مختار، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق۔ دنیا ترقی کر چکی ہے، اور اس ترقی یافتہ دور میں جب کہ تمام کے تمام لوگوں کو ہوم رول مل رہا ہے، لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، بیداری شعور ہو گیا۔ اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں بلکہ ہمدردانہ غور و خوض کی مستحق ہے۔ مصنف بتاتے ہیں اس لیے لاہور کے عوام نے میونسپلٹی سے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ جہاں دنیا میں لوگوں کو حق خود مختاری مل چکا ہے اور لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے، اگر اہل لاہور نے یہ خواہش ظاہر کر دی ہے تو بیجا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی آب و ہوا، شفاف آب و ہوا دی جائے۔ ان کی خواہش ناجائز نہیں ہے بلکہ ہمدردانہ غور و خوض کی مستحق ہے۔ آگے بتاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت ہے۔ کمیٹی بیچاری تو قلت کمی ہو گئی، کمیٹی بیچاری تو خود ہوا کے بجائے گرد اور دھوئیں پہ گزارا کر رہی ہے۔ شہر لاہور میں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، اطراف میں سوائے اڑتی گرد کے دھوئیں کے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، لہٰذا کمیٹی خود بہت پریشان ہے۔ اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ رفاہ عامہ کے پیش نظر، مفاد عامہ، عام آدمی کا فائدہ، عام آدمی کی بھلائی ہو گئی، یہ لفظ مفاد عامہ ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، مفاد عامہ، عام آدمی کے فائدے کے لیے کے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بے جا استعمال نہ کریں۔ بے جا فالتو ہو گیا، استعمال نہ کریں بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعاری سے کام لیں، کفایت شعاری بچت ہو گئی۔ کمیٹی نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کے پاس خود ہوا کی قلت ہے، اگر لوگ ایسے ہی تیز سانس لیتے رہے، ہوا کا استعمال کرتے رہے، تو کہیں یہ نہ ہو جو تھوڑی بہت
हवा बची है, आबो हवा, ये भी ख़त्म हो जाए। लिहाजा अगर सांस ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चुनांचे अब लाहौर में आम ज़रूरियात के लिए हवा के बजाय गर्द, आगे बताता है, चुनांचे अब लाहौर में आम ज़रूरियात के लिए हवा की बजाय गर्द और ख़ास हालात में धुआं इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई शख्स सांस लेना चाहे तो पहले उसे हवा के बजाय गर्द दी जाती है, और अगर बिल्कुल मरने के करीब है तो फिर उसे धुआं सूंघा दिया जाता है। कमेटी ने जा बजा धुएँ और गर्द के मुहैया करने के मरकज़ खोल दिए हैं। तंज करता है उन कारखानों पे, फैक्ट्रियों पे जिनसे निकलने वाले धुएँ ने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तंज करता है उन टूटी फूटी सड़कों पे जहाँ माँ सिवाय गर्द के कुछ और दिखाई नहीं देता। कहता मराकज़ खोल दिए हैं जहाँ ये मुरक्कबात मजमूए हो गए, यानी गर्द और धुआं मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। उम्मीद की जाती है इससे नहायत तसल्ली बख्श नताइज बरामद होंगे। मुसन्निफ़ तंज करता है कि लगता है जिस तरह हुकूमत आलूदगी फैला रही है, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी भी है, उस आलूदगी के बाइस धुआं, चिमनियों से निकलने वाला फैक्ट्रियों के धुआं और सड़कों पे दिखाई देने वाली गर्द है। कुछ न कुछ बेहतर नताइज बरामद हो जाएंगे। ये बेटा अगला पैराग्राफ आपका बहम रसानी आब, ये पैराग्राफ आपका अहम है, आप इस पर निशान लगा लेंगे। ये मैं पहले ज़बानी बोलूँगा, इसके बाद रिटर्न मेरे पास इसकी तशरीह मौजूद है, फिर वो मैं आपको पढ़ के समझा भी दूँगा। पहले मैं रीडिंग करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा, फिर मैं आपको इसका रिटर्न देता हूँ। बहम रसानी आब, बहम रसानी कहते हैं पानी की तरसील या पानी की रसाई या पानी की पहुँच को। शहरों में पानी पहुँचाना के लिए एक स्कीम अरसे से कमेटी के ज़ेरे गौर है। तंज है जिस पैराग्राफ का मरकज़ी नुक्ता है, मरकज़ी ख्याल है। आप लोग जानते हैं, आप लोग मुझसे फेमिलियर हैं, आप मुझसे वाकिफ़ हैं कि हम किसी भी चीज़ का पहले मरकज़ी नुक्ता बाहर निकाल लेते हैं। ज़ेरे गौर है। मसला कहना क्या चाहता है यहाँ बताना ये चाहता है कि वतन अज़ीज़ में मंसूबे बांध तो लिए जाते हैं, मगर साल साल गुजर जाने के बावजूद उन मंसूबों पर किसी तरह से कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। लाहौर में भी एक स्कीम बनाई गई थी पानी पहुंचाने की। ये स्कीम कब बनी है? ये स्कीम निज़ाम सक्के के वक्त से चली आती है। सक्का माशकी को कहा जाता है, पानी भरने वाला। तंज है और तंज की गहरी छाप यहाँ हमें दिखाई देती है, चली आती है। लेकिन मुसीबत ये है कि निज़ाम सक्के के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मुसविदात तहरीरें हो गई, बाज़ तो तल्फ़ हो चुके हैं। तल्फ़ हो जाना, ज़ाया हो जाना, और जो बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। इसलिए मुमकिन है कि तहकीक छानबीन हो गई और तदकीक तरतीब देना हो गया में अभी चंद साल और लग जाएंगे। यहाँ के आपका पैराग्राफ ख़त्म होता है। अब इस पैराग्राफ में कहानी क्या है, निज़ाम सक्का कौन है? मुसन्निफ़ एक तलमीह के ज़रिए अपने मौक़िफ़ को ज़ाहिर करने की कोशिश करता है और वो मौक़िफ़ निज़ाम सक्का है। निज़ाम सक्का कौन है हम देखते हैं। ये हमारे पास निज़ाम सक्के की पूरी डिटेल है, मैंने यहाँ लिख दिया है। लाहौर का जोग्राफिया है, हवाला इबारत हमारा ये हो गया। शहर लाहौर में पानी की तरसील के लिए एक मंसूबा अरसे से कमेटी के ज़ेरे गौर है के पर्दे में हकीकतन एक तंज है कि वतन अज़ीज़ में मंसूबे तो बांध लिए जाते हैं, मगर बरसों गुजरने के बाद इन मंसूबों पर अमल नहीं होता। इस खराबी को बयान करने के लिए मुसन्निफ़ ने एक बार फिर एक तारीख़ी वाक़ये को मज़ाह के पर्दे में हमारे सामने पेश किया है, और वो वाक़या निज़ाम सक्के का है। निज़ाम सक्का एक माशकी यानी पानी भरने वाला था। निज़ाम सक्के ने मुग़ल बादशाह हुमायूं को दरियाए गंगा में डूबने से बचाया। उसने कब बचाया और कैसे बचाया उसको हम देखते हैं। हुमायूं ने जून 1539 में होने वाली चौसा के मुकाम पर लड़ाई में शेर शाह सूरी को से शिकस्त खाकर भागते हुए दरियाए गंगा में छलांग लगाई। मैं बाद में भी समझाता भी हूँ आपको, फ़िलहाल आप देख लेंगे। जिसके बदले में हुमायूं ने उसे एक दिन की बादशाहत अता की थी। इसने
अपने मुख्तसर दौर यानी एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के जारी किए। साथ ही उसने ये भी कानून बना दिया निज़ाम सक्के ने। निज़ाम सक्का जो कि बज़ाते खुद मालशी था, उसके लिए सबसे अहम मसला पानी की तरसील का था, यानी माशकी पानी भरने वाले आमतौर पर लोगों के घरों में जा जाकर पानी पहुंचाया करते थे। निज़ाम सक्का जैसे ही एक दिन का बादशाह बना, हकीकत यह कि जून 1539 में जब हमला किया शेर शाह सूरी ने बरसगीर पर चौंसा के मकाम पर, उसकी लड़ाई हुई हुमायूं बादशाह के साथ। उसने हमला किया, बादशाह डर के मारे भागा और उसने दरिया में छलांग लगा दी, गंगा में। वहाँ एक माश की पानी भरने के लिए आया हुआ था, उसका नाम निज़ाम था। उसने बादशाह की जान बचाई और बादशाह ने उस खुशी में उसे एक दिन की बादशाहत दे दी। बाज़ किताबों में 1.5 दिन लिखा है, बाज़ किताबों में 1 दिन लिखा है। अब निज़ाम सक्का 1.5 दिन के लिए बादशाह बन गया। जब बादशाह बना तो उसने पहल ये हुक्म जारी किया कि आइंदा पानी पहुंचाना हुकूमत का काम होगा। एक स्कीम पेश की कि आइंदा दौर हुकूमत में जो शख्स भी बादशाह बनेगा, उसे मालूम था वो 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। पानी पहुंचाना माशकी के बजाय हुकूमत का काम हुआ करेगा। जैसा कि कहा जाता है, बाज़ औक़ात कम अकल दिखाई देने वाले दानिशमंदी दिखा जाते हैं, या इंसान अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। हम पलटते हैं वापस किताब की तरफ अपनी। ये कहानी हमारी यहाँ ख़त्म हुई। आगे बताता है कि आर्जी तौर पर पानी का ये इंतज़ाम किया गया है कि फ़िलहाल बारिश के पानी को हत्तल वसा जहाँ तक हो सके शहर से बाहर निकलने नहीं देते। तंज है उन जोड़ों पे जो जोड़ शहर में बन चुके हैं। कहते ये जोड़ खुद नहीं बने, बल्कि म्यूनसिपल कमेटी ने पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जगह जगह जोड़ खड़े कर दिए हैं। मज़ाह का पहलू साथ साथ चलता जाएगा। इसमें कमेटी को बहुत कामयाबी हासिल हुई है। उम्मीद की जाती है कि थोड़े ही अरसे में हर मोहल्ले का अपना एक दरिया होगा। जैसा कि पानी इकट्ठा किया जा रहा है, यकीनन ये उम्मीद की जा सकती है कि हर मोहल्ले का अपना दरिया हो जाएगा, जिसमें रफ्ता रफ्ता मछलियाँ पैदा होंगी और हर मछली के पेट में कमेटी की एक अंगूठी होगी जो राय दहिंदगी के मौके पर हर राय दहिंदा पहन कर आएगा। राय दहिंदगी वोट डालना हो गया और राय दहिंदा वोट डालने वाला हो गया। बताता है जोड़ों में पानी खड़ा होगा, बारिश का पानी रोक दिया गया है। उन जोड़ों पे तंज करता है जो बारिश के बाइस वहाँ बन चुके हैं। वहाँ पानी खड़ा होगा, हर मोहल्ले का अपना दरिया होगा, दरिया में मछलियाँ पैदा होंगी, मछली को पेट चीरा जाएगा तो अलिफ लैलवी दास्तानों की मानिंद मछली के पेट से एक अंगूठी निकलेगी जो इस बात की निशानदेही करेगी कि ये म्यूनसिपल कमेटी बहुत अच्छी है, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, और फिर वो अंगूठी दिखाकर वोट डालने की कोशिश की जाएगी। निज़ाम सक्के के मुसविदात से इस कदर ज़रूर साबित हुआ कि पानी पहुँचाने के लिए नल ज़रूरी हैं। नल टूंटियाँ हो गई, सरकारी पाइपलाइन हो गई। चुनांचे कमेटी ने करोड़ों रुपए खर्च करके जा बजा नल लगवा दिए हैं। पाइपलाइन इस लाहौर में बिछवा दी गई हैं, मगर उन पाइप लाइनों में पानी नहीं छोड़ा गया। बाज़ औक़ात टूंटी खोली जाती है तो शूं शूं की आवाज़ें उसमें से निकलती हैं और कभी कभार चंद कतरे भी टपकते हैं। मुसन्निफ़ ने बड़ी बारीकी से उसे तंज के पैराए में हमारे सामने बयान करने की कोशिश की है। मुसन्निफ़ बताते हैं फ़िलहाल उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी है। बेटा भी ये मैंने कोई इस्तेमाल कभी कंप्यूटर नहीं किया, इसलिए कुछ मुझे दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन भरी है, लेकिन माहिरीन की राय है कि एक ना एक दिन ये गैसें ज़रूर मिलकर पानी बन जाएंगी। तंज का उनसर है। शूं शूं निकलने वाली आवाज़ों को गैसों से ताबीर करते हैं। गैसें भर दी गई हैं, ये वो फार्मूला है जो पानी बनाने का है। चुनांचे बाज़ नलों में अब भी चंद कतरे रोज़ाना टपकते हैं, जो इस बात की दलील है कि गैसें अनकरीब पानी बनने वाली हैं। अहले शहर को हिदायत की गई है कि अपने अपने घड़े नलों के नीचे रख छोड़ें ताकि ऐन वक्त पर ताख़ीर की वजह से किसी की दिल शिकनी ना हो। दिल शिकनी होना दिल टूटना हो गया। शहर के लोग इस पर बहुत खुशियाँ मना रहे हैं।
طنز کی جھلک ہے کہ لاہور میں جیسے ہی کوئی اسکیم آتی ہے اب اس اسکیم پر عمل نہیں ہوتا اور لوگ پہلے سے ڈھول ڈھمکا بجانا جشن منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے سے میں پیراگراف آپ کے اہم نہیں ہیں، 2 دنوں میں ہم نے ختم کرنا ہے۔ اب آدھا سبق ہم کل دیکھیں گے اور آدھا انشاءاللہ تعالی پرسوں کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔